Hello and good morning, students. Welcome to another online political science class. So, students, in the midst of all these pandemic situations, we are starting and we are doing and running our online classes. I hope that the past two videos that went up in your pocket that has been fruitful to you. So, let's start the lecture of today. So, today we are again going to that chapter that is political theory and introduction. So in this area again we will study about another angle of political theory. Okay, so political theory जो एरिया है उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना है पॉलिटिकल साइंस के बारे में, उसके बाद हमने जाना है व्हाट इज पॉलिटिक्स. ओके, आज हम जानेंगे what should we study in political theory. Okay, so ये है हमारा टॉपिक आज का स्टूडेंट्स. व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं. ओके, सो पॉलिटिकल साइंस इज ए वास्ट एरिया. मैंने आगे आपको बोला पॉलिटिकल साइंस इज ए वास्ट एरिया. So many things has to be covered up in political science, and from that whole area we will study one part, that is political theory part. जो theory एक part होता है, क्योंकि आपका जो किताब है वो किताब खुद से बोलता है political theory. So political theory में generally we study about the different types of concepts, okay, different types of ideas, different types of principles that has been done or has been put into practice in different parts of the country by the constitution, by the government, and many of the political philosophers who has inspired, okay, time to time in different parts of the world. So let's start the lecture today, students. So let's go to the board work. Okay, now see what do we study in political theory. I have given a question mark here, same like your book. So this is a very much a question mark in our mind. What should we study in political theory? So हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें क्या आता है, मैंने पॉइंट वाइज लिख के रखा. We study about movements, development and change. Okay, we study about movement. So first of all let's start with a movement. तो movement में मैं लेती हूँ जैसे कि our Indian freedom struggle. We all know that in how has India fought for its independence. Okay, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा कहीं पे. Okay, that how did our different fighters, freedom fighters has fought for our इंडिपेंडेंस. ओके, बहुत सारा मूवमेंट किया उन लोगों ने, जैसे कि इंडिया में बहुत सारा फेमस मूवमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि शिपाही म्यूटिनी, आपको याद है स्टूडेंट्स, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. ओके, देन बहादुर शाह जफर, द ग्रेट बहादुर शाह जफर, द लास्ट परहैप्स द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में देखेंगे तो दैट वाज बिपिन चंद्र पाल. Okay, then Bal Gangadhar Tilak, then Subhash Chandra Bose, then Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, okay, Khan Abdul Ghaffar Khan. So many people who has done the movement for India. Okay, ये struggling phase था, because what ये movement क्यों हुआ इंडिया में, ये movement क्यों हुआ? Because they wanted to fight against the Britishers. हमें ब्रिटिशर्स से छुटकारा चाहिए था. Okay, so we wanted to quit from the Britishers. So हमने स्ट्रगल किया, लॉन्ग टाइम स्ट्रगल किया, and we got our independence. और इस जो दौरान, इस मूवमेंट के दौरान हमें बहुत सारे किताबों ने, बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ों ने हमें इंस्पायर किया. ओके, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको बहुत सारे चीज़ों से इंस्पायर किया. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ और हमें 15 अगस्त 1947 में हमें क्या मिला? वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस एंड देन वी गॉट आवर फ्रीडम. ठीक है, सो दैट इज मूवमेंट. इस तरह से डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट मूवमेंट है, जैसे कि रशियन रिवोल्यूशन, ओके, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो इस तरह से और भी बहुत सारे रिवोल्यूशंस है, बहुत सारे मूवमेंट्स है, डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट मुद्दा, डिफरेंट इश्यूज. ओके, उसके बाद क्या लिखा यहाँ पे? डेवलपमेंट एंड
change. So every time political theory में हम देखते हैं that there is development, there is change. As society is changing, as we are moving, there is development, there is change. Okay. एक सोसाइटी जो है ना वो स्टैटिक नहीं रहता, वो एक जगह पे खड़ा नहीं रहता, हर टाइम वो बदलते रहता है. आज देखो आप किसी एक जगह पे घूमने जाओ, आप देखोगे वो जगह एक तरह का था, उसके बाद आप 3 या 4 साल बाद में जाओ उस जगह में, आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया उस जगह में. अरे यहाँ तो आगे पक्का सड़क नहीं था, पक्का सड़क बन गया. अरे यहाँ तो आगे मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज बन गया. अरे यहाँ पे तो आगे स्कूल नहीं था, स्कूल बन गया. So that is called development. Okay, so we also study different types of development: social development, political development, economic development, cultural development, and change. So many things we study. As हम political science में society को पढ़ते हैं ना, state, government, society, ये सब कुछ पढ़ते हैं. तो ये सब कुछ पढ़ने के टाइम में obviously we study about the development and about the change. Okay. Now next one is we study certain values, principles. Okay, बहुत सारे values और principles हमारे जीवन में क्या होता है. Every time every people has some concept in his life, some values in his life, some principles. बहुत सारे लोग होते हैं जो आदर्शवादी होते हैं. They have some principles in their life. Okay, आपने कभी रियलिटी में कभी देखा है? बहुत सारे लोग आपके घर में भी शायद हुआ है, या आपके फैमिली में किसी को आपने देखा है ऐसा होते हुए कि some people are there who never tell lie. Okay, who never tell lie because it is their value, it is their principle of life. Okay, बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे को हेल्प करते हैं, दूसरे को मदद करते हैं. Okay, that is their principle of life. So इस तरह से डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट वैल्यूज है, डिफरेंट प्रिंसिपल्स है. Okay, so we study about the different principles, different values in that particular society, in that particular country. Okay, तो यहाँ पे हमने 2-3 एग्जाम्पल लिया है. That is one, democracy, freedom, equality. Okay, so these things, democracy, freedom, equality, we will study in later on. हम यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा. तो मैं जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बोल देती हूँ. डेमोक्रेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी हम किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? गणतंत्र. ओके, पीपुल्स पावर, आपके पावर, मेरा पावर, सब लोगों का पावर. सो पीपुल्स पावर जहाँ पे होता है, जहाँ पे एक कंट्री में इलेक्शन होता है, हमें चूज करने का, हमें जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज करने का अधिकार होता है. वेयर वी हैव द राइट टू चूज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर्स, देयर इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के साथ आता है लिबर्टी, डेमोक्रेसी के साथ आता है फ्रीडम. ओके, तो फ्रीडम मतलब क्या? लिबर्टी. ओके, एवरीथिंग, राइट टू लाइफ, आपके रहने का अधिकार, आपको खाने का अधिकार, आपको पहनने का अधिकार, आपको चूज करने का अधिकार, आप कौन सा स्कूल में पढ़ेंगे, आपको चूज करने का अधिकार, आप कौन सा जॉब करेंगे, आपको चूज करने का अधिकार, आप किससे शादी करेंगे. ओके, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन ए फ्रीडम. ओके, जिसको हम पढ़ते हैं. सो मेनी कॉन्सेप्ट अंडर दिस मेन कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रीडम. उसके बाद इक्वलिटी. इक्वलिटी हमें क्या सिखाता है? इक्वलिटी मीन्स दैट वी ऑल पीपल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. हम सब समान है. जैसे कि हमारे इंडिया में सब लोगों का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, ये क्या बोलता है? वी ऑल पीपल आर equal, we all people are equal and we all people are equal in the eye of law. लॉ के सामने में हम सब समान है. कोई भी रिच, कोई भी पोर इंसान हो, कोई भी लिटरेट हो, कोई भी इलिटरेट हो, बट वी ऑल पीपल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. तो लॉ के सामने हम सब समान है. ओके, सो इस तरह का छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो एक कंट्री में होता है ना, दैट थिंग इज स्टडीड इन पॉलिटिकल थ्योरी. ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए. वी स्टडी आइडियाज, वैल्यूज ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स. बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं हमारे कंट्री में. बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं जिनके आइडिया हम पढ़ते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिनका लिखना, जिनका नॉवेल, जिनका किताब जो है वो सब हम पढ़ते हैं. ओके, तो यहाँ पे मैंने भाग किया है. देखो स्टूडेंट्स,
यहाँ पे एरिस्टोटल, रूसो, कार्ल मार्क्स, ये तीनों का मैंने डिवाइड किया है, दे आर वेस्टर्न फिलोसोफर्स. ओके, तो एरिस्टोटल, वी ऑल नो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. ओके, देन रूसो, ये जो इंसान है रूसो, ही इज ए ग्रेट इंस्पायर. ओके, वो बहुत, उन्होंने बहुत इंस्पायर किया टू द फ्रांच कंट्री. ओके, जो फ्रांस में जो कंट्री है, फ्रेंच कंट्री बोलते हैं हम, उसमें एक बार एक रिवोल्यूशन हुआ था, एक मूवमेंट हुआ था. उस मूवमेंट का नाम था क्या? फ्रेंच रिवोल्यूशन. ओके, तो उस फ्रेंच रिवोल्यूशन में उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिया था, 3 कॉन्सेप्ट, 3 आइडिया, दैट इज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट लेके उस कंट्री में पूरा फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था अगेंस्ट द किंग. ओके, कॉमन लोगों ने रिवोल्यूशन किया था अगेंस्ट द किंग. और ये जो कॉन्सेप्ट ना रूसो ने दिया, ये कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में भी इसको इंस्पायर किया. इवन डिफरेंट कंट्री में इसको बहुत मतलब इंस्पायर किया और बहुत लोगों ने इसको अडॉप्ट भी किया है. ओके, इस तरह से फिर देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इंडियन फिलोसोफर्स, महात्मा गांधी, अंबेडकर. सो वी नो ऑल दिस पीपल ना. आप पहचानते हैं ना महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन. ही इज ए बिग पॉलिटिशियन. ओके, बट ए ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं, ए ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ द सोसाइटी. उन्होंने एक बुक लिखा है हिंद स्वराज, बहुत सारे बुक लिखा, एक बुक है हिंद स्वराज. उस बुक में उन्होंने अपने जो शूद्र लोग है, दलित लोग है, उनके बारे में बहुत कुछ बोला. दे मस्ट गेट फ्रीडम, और कंट्री के फ्रीडम के बारे में बहुत कुछ के बारे में उन्होंने लिखा उस बुक में. उन्होंने इस तरह से और भी जो इंसान है, दैट इज अम्बेडकर. ओके, तो अम्बेडकर जो है, ही वाज ए वेरी मच एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है. ही वाज आल्सो ए रिफॉर्मर. ही हैज डन सम ग्रेट रिफॉर्म मूवमेंट फॉर द दलित पीपल इन द इंडियन सोसाइटी. ओके, तो ही हैज, उन्होंने बहुत फाइटिंग किया, और फाइटिंग के बाद उन्होंने क्या किया, स्ट्रगलिंग किया. एक्चुअली स्ट्रगलिंग के बाद उन्होंने एक चीज निकाला, एंड दैट इज व्हाट? अनटचेबिलिटी एक्ट. स्टूडेंट्स, हमारे इंडियन समाज में पहले में ये था कि जो रिच लोग, सॉरी अपर कास्ट लोग है ना, अपर कास्ट लोग कैन नॉट टच द लोअर कास्ट लोग, और लोअर कास्ट लोग जो है वो उनके अपर कास्ट लोग के पास ही नहीं जा सकते, उनके घर पे भी नहीं जा पाएंगे. और फिर सोच लो कहीं पे एक गांव में एक मंदिर है ना, या फिर एक कुछ भी एक कॉमन एक पब्लिक प्लेस है, तो उसमें जहाँ पे हायर कास्ट लोग जाएंगे, वहाँ पे लोअर कास्ट लोग नहीं जा पाएंगे. सो बिकॉज ऑफ देयर थिंग, लोअर कास्ट लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, दे वर बीइंग टॉर्चर्ड. ओके, तो उसके लिए उन्होंने फाइट किया, और B.R. अम्बेडकर के द्वारा उन्होंने एक एक्ट निकला, और उस एक्ट का नाम था अनटचेबिलिटी एक्ट, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आर्टिकल 17 के द्वारा उसको रखा गया है. ओके, तो आज अगर कोई भी ये छुआछूत का कुछ भी खेल खेलेगा ना, तो इसमें बहुत पनिशमेंट मिलेगा किसी इंसान को. सो इस तरह से समाज में लोगों ने बहुत कुछ किया. पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, दे वे himself a great philosopher, and they have tried to inspire the people of the country, particularly a society, particularly some people or lots of people. And then these things we all become inspired, or जो values or जो ideas or जो principles है, we has carried out in our life or in our nation, in our country, in our society, and that we study in political theory. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, देयर आइडियाज फाइंड प्लेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो हम अभी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बोलेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अदर कॉन्स्टिट्यूशंस. ओके, द आइडियाज प्रिंसिपल्स शेप द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, सोशल लाइफ इन ए सिस्टमेटिक मैनर. तो हम यहाँ पे मिलेंगे हमारा कंट्री का एग्जाम्पल. हमारे कंट्री का एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी कुछ आइडिया को अडॉप्ट किया गया, ओके, जितना भी आइडिया को अडॉप्ट किया गया, वो सब आइडिया was taken now from somewhere or the other. किसी ना किसी कंट्री से वो आइडिया को लिया गया है, and we have taken down those ideas from different country and we put into practice in our Indian constitution those different ideas. Okay, हमने लिया कहीं से, इंस्पायरिंग होके
एंड देन हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमने वो सब कुछ ढाला है, सो दैट द पीपल इन द पर्टिकुलर सोसाइटी इन इंडिया दे कैन लिव इन ए वेरी ग्रेट वे, और बहुत अच्छी तरह से और रह पाएंगे ये सब आइडिया को लेके। ओके स्टूडेंट्स, हम जंगल में तो नहीं रहते, हम एक समाज में रहते हैं। वी लिव इन ए सिविलाइज सोसाइटी, ओके, और सिविलाइज नेशन। और इस सिविलाइज नेशन और सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ आइडिया, कुछ प्रिंसिपल्स को लेके नहीं चलेंगे तो हमारा लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग, ये पॉलिटिकल थ्योरी हमें सिखाता है हाउ टू लिव विद दोज वैल्यूज, विद दोज प्रिंसिपल्स, विद दोज आइडियाज, विद दोज कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेती हूँ स्टूडेंट्स। ये देखो, some ideas, values, principles put into reality, तो उसको रियलिटी में ढाला गया है। यहाँ पे मैंने पे एग्जांपल लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे तीन कंट्री का एग्जांपल लिया है। यहाँ पे वन इज इंडिया, वन इज यूके, वन इज यूएस। ओके, तो इंडिया में जो एग्जांपल लिया मैंने, कौन सा एग्जांपल? फ्रीडम, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट। कौन सा एग्जांपल स्टूडेंट्स? फ्रीडम, डेमोक्रेसी एंड फंडामेंटल राइट्स। सो फ्रीडम मीन्स कि हमें फ्रीडम चाहिए। ओके, अभी अगर फ्रीडम बोलूँ, ओके, फ्रीडम के बारे में अगर बोलूँ तो क्या है? वी हैव सफर्ड, वी हैव इंडियन पीपल, वी हैव सफर्ड ए लॉट बिकॉज वी हैव नॉट गॉट फ्रीडम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे, हमें बहुत टाइप का फ्रीडम हमें नहीं मिला। फ्रीडम टू गो टू स्कूल, फ्रीडम टू हैव ए गुड जॉब, फ्रीडम टू डू व्हाट एवर थिंग्स वी लाइक, ये सब कुछ बहुत सारे चीज़ों के लिए हमें नहीं मिला लिबर्टी और फ्रीडम। सो जब हमारा जब संविधान बना, संविधान में हमारा जो प्रेम्बल है, ओके, प्रेम्बल में या संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देयर शुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, सब लोगों को फ्रीडम मिलना चाहिए। ओके, उसके बाद आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट डेमोक्रेसी। जैसे कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और इंडिया में एवरी 5 years वी गो फॉर इलेक्शन। ओके, हमारे इंडिया में कोई भी आके सीट में बैठ के नहीं बोलता कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ओके, मैं ये मिनिस्टर हूँ, मैं वो मिनिस्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये कोई नहीं बोलेगा। एवरीथिंग हैज टू गो थ्रू ए इलेक्शन। और हम जो कॉमन लोग हैं, वी गो फॉर वोटिंग, वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव। सो दैट इज डेमोक्रेसी और गणतंत्र। ओके, देन फंडामेंटल राइट्स। तो इन इंडिया वी हैव, हमारे पास कितना फंडामेंटल राइट्स है? इन इंडिया वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे दूसरे बुक से। सो इन 6 फंडामेंटल राइट्स वी हैव राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कितना सारा फ्रीडम हमारे पास है, हमें दिया गया है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑल दीज थिंग्स इंस्पायर अस। तो ये सब चीज़ हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंडर में पढ़ते हैं। ओके, फिर देखा गया है कि डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिया है, दैट इज यूके रूल ऑफ लॉ। ओके, रूल ऑफ लॉ मतलब यूके में रूल ऑफ लॉ के अंडर में आता है कि एनीबॉडी, जो भी एक इंसान है वो एक रूल के अंदर में बहुत सेफ है। ओके, एनीबॉडी कैन नॉट बी पनिश्ड जस्ट लाइक दैट। तो रूल ऑफ लॉ के अंदर में ये लिखा गया कि ये डाइसी है, एक इंसान है डाइसी ने ये कॉन्सेप्ट बनाया रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के अंदर में लिखा गया कि एनीबॉडी कैन नॉट बी पनिश्ड आर्बिटरीली। किसी भी इंसान को जोर जबरदस्ती पकड़ के आप पनिश नहीं कर सकते, और सब के लिए लॉ समान है। ऑल पीपुल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। तो दिस रूल ऑफ लॉ जो है वो ये सिखाता है यहाँ पे। ओके, फिर हमने क्या लिया? यूएस से सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये फिर आता है, सोच लो किसी भी कंट्री का 3 ऑर्गन होता है। ओके, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ओके, ये तीन पावर में डिवाइड होता है। तो जो लेजिस्लेचर है इसको पार्लियामेंट बोलते हैं हम। जो एग्जीक्यूटिव सेक्शन है वो जो मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, उस सेक्शन को बोलते हैं।
और जो जुडिशरी है वो कोर्ट को बोलते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये 3 एंगल का जो पावर है ना उसको बोलते हैं यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, तो यूएस में सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब हो गया 3 ऑर्गन अपना अपना काम खुद से करेंगे, नोबडी विल इंटरफियर इन ईच अदर्स वर्क। तो स्टूडेंट्स इस तरह से डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट आइडियाज है, डिफरेंट वैल्यूज है। ओके, ऑल दोज थिंग्स वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, फिर हम देखते हैं जब इसको ट्रूली प्रैक्टिकली हम इसको अगर प्रैक्टिस में लाते हैं। ओके, अगर मैं सोच लूँ इक्वलिटी के बारे में, ओके, आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ इक्वलिटी फ्रॉम इंडिया इक्वलिटी। ओके, इंडिया में देखा गया है कि इक्वलिटी जो है वो सबको समान तरह से नहीं मिलता। सबको क्या बोला गया, ऑल पीपल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए सब लोग समान नहीं है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का फैसिलिटी और बेनिफिट्स नहीं मिलता। ओके, सो बहुत सारी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, सोसाइटी में, समाज में बहुत सारे चीज़ों का डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये सब चीज़ प्रैक्टिकली हम पढ़ते हैं। दुनिया अभी चेंज हो रहा है। ओके, दुनिया चेंज हो रहा है, ए सोसाइटी इज चेंजिंग, complexity coming up into our life, new developments coming up into our life, new challenges coming up into our life, into the country। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो भी चेंजिंग हो रहा है, बहुत सारा चीज़, जैसे कि नेटवर्किंग सिस्टम। ओके, नेटवर्किंग सिस्टम, अभी आप हमारा नेटवर्किंग सिस्टम किसको हम बोलते हैं, ये जो मैं कर रही हूँ आपसे। ओके, ऑनलाइन क्लास में मैं क्लास ले रही हूँ आपका, शायद ये आज से बहुत साल पहले ये नहीं था, कभी भी ये संभव नहीं था ये ऑनलाइन सिस्टम। तो अभी देखो हम ऑनलाइन सिस्टम में से आप क्लास ले रहे हैं। ओके, ऑनलाइन जाके हम कुछ भी हम बैंकिंग सिस्टम कर सकते हैं, नेट बैंकिंग सिस्टम कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, सामान खरीद सकते हैं। ओके, सो ऑल दिस थिंग के लिए हमें फ्रीडम चाहिए, हमें इक्वलिटी चाहिए। सो दिस ऑल कॉन्सेप्ट, जितने भी वैल्यूज है, जितने भी प्रिंसिपल्स है, जो मैंने ब्लैक बोर्ड में आपको लिखा के दिखाया, दिस आर ओनली सम ऑफ द फ्यू एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन। उसके बाद बहुत सारा चीज़ है जो हमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने को मिलता है। तो ऑल दीज थिंग्स वी स्टडी इन आवर एरिया कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी। सो पॉलिटिकल थ्योरी इज ए वास्ट एरिया जहाँ पे हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जस्ट वन एरिया जो हमने आज लिया, what should we study in political theory? Okay, let me again remind you, in political theory we study about different things. We study about movement, we study about change, we study about development, ठीक है, we study about new concepts, we study about ideas, old ideas, new ideas, we study about democracy, we study about liberty or freedom, we study about equality, we study about जो लिखा है यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So many things we study about the ideas of political philosophers, okay, who revolutionized the whole world into different phase of our society। तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं इन पॉलिटिकल थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, आप इसको पढ़ना and just try to get it in your mind, and then we will go from this area to next area. Okay, so for today students, thank you.